An electoral college refers to group of people who choose president and vice president of America. अमेरिका में जो सामान्य राष्ट्रपति चुनाव चक्र है उसकी प्रक्रिया है क्या? यदि हम लास्ट 5 साल की बात करें तो 5 साल में भारत द्वारा यूएस के साथ नियर अबाउट $191 का ट्रेड किया गया था, जिसमें It has notable implication for India in several areas. अमेरिका में राष्ट्रपति बनने की कंडीशंस ये होती है। इतिहास में पहली बार अमेरिका में हुआ है कि जब कोई दोबारा राष्ट्रपति बना हो, एक ही व्यक्ति कोई दोबारा राष्ट्रपति बना हो। महिला राष्ट्रपति के इंतजार में 235 साल बीत गए हैं। Good morning, everybody. Today, I am Simran Rathore is here to speak on U.S. presidential election process. So, this process occurs in every 4 years, and it happens only on first Tuesday of November. After every 4 years, actually, people do not directly elect president of America. They instead vote for some group of officials to make an electoral college. An electoral college refers to group of people who choose president and vice president of America. Right? So once citizens done with voting, electoral college meet and decides whom to choose as a president and vice president of America. How electoral college works: as U.S. Congress is bicameral legislature, federal government of United States. U.S. Congress have two chambers: House of Representatives and a Senate. Both combinedly have 535 members, in which House of Representatives have 435 members and Senate have 100 members in its house. Senate, it depends on the state, as United States have 50 states in that country. So from each state, 2 representatives have been chosen from a Senate, and House of Representatives depends on the size of the district, right? Like as there are 50 states in America, so from each state, two senates have been chosen in the Senate, and they serve for a term for 6 years, and for every 1/3, in every 2 years, 1/3 of the members from Senate has been re-elected, like as in India. And the House of Representatives have been served and elected in every 2 years of term, and its election depends on the size of the district. As Alaska, North Dakota have only 1 representative from it, and California and Texas have 53 and 38 members respectively. Senate members are elected by governor, and the presiding officer of Senate is vice president, while the presiding officer of House of Representatives is Speaker of the House. What is the difference between House of Representatives and Senate? House of Representatives is a majority party, could be either Democratic and Republican party. As the power of House of Representatives party is to draft a chamber rule and schedule bills. Primary control on a government budget. Yani these are the rules of House of Representatives. Yani who is more powerful, who have power. These are the things. Appropriate bills must be originated in the House. Yani House of Representatives have a right to give appropriate bills. More accessible to the constituencies than Senate. House of Representatives has more accessible to the citizens. Power to initiate impeachment proceedings against government officials, including governor and the president. And they have a power to initiate, just to initiate the impeachment and to give the judgment and give a impeachment trial. There is a power to Senate, right? What are the powers for Senate have? They need to set an agenda and decide what bills, what issue, and what appointment will be dealt. Special power come from a category of advice and consent. Senate approves the appointment of federal judges, cabinet members, and rectification of treaties with other nations. The constitutions give the Senate the power to approve presidential nomination. The Senate has a sole power to conduct impeachment trial, serve as a jury. As I said before, the initiate of impeachment is taken from a House of Representatives,
But to give a judgment to that impeachment and to give the trial of that impeachment is depends on Senate, right? As it happens in 1919 with the President Bill Clinton. To pass the law, it must be necessary that the law must be passed in both the houses, the House of Representatives as well as in the Senate. In my opinion, Senate has more power as they have a set of agenda for future. They are responsible for the impeachment and they are also responsible for the appointment of judges as well as cabinet members, which is an important role for a government to initiate. Okay. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आज जिस मुद्दे पे आप सभी के समक्ष अपने विचार रखना चाह रही हूँ वो है अभी अमेरिका में जो सामान्य राष्ट्रपति चुनाव चक्र है उसकी प्रक्रिया है क्या। बेसिकली जो वहां पे राष्ट्रपति चुनाव होते हैं वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। तो चुनाव प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक खत्म होती है, आज हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो पहला चरण है वहां पर जो चुनावी वर्ष होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें 2024 के जो चुनाव अभी नवंबर में हुए हैं, तो इसका जो पिछला साल है 2023 के वसंत से ही वहां पे जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग उम्मीदवार अपने पद के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए अपने नामांकन की घोषणा कर लेते हैं। और इसके उपरांत जो दूसरा चरण हम देखते हैं इसमें उसमें बात करते हैं हम प्राइमरी और कॉकस की। प्राइमरी और कॉकस अमेरिका में एक दो ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से अगर हम मोटे तौर पर ये समझें तो राष्ट्रपति जो पद है उसके चयन सूची को फाइनल करता है, फाइनलाइज करता है। तीसरे चरण पर हम अगर आते हैं तो जो तीसरा चरण है हमारा वो है राष्ट्रपति नामांकन सम्मेलन। ये जो चरण है ये जुलाई से लेकर सितंबर फर्स्ट वीक तक चलता है। इस चरण में यह होता है कि जो प्राइमरी और कॉकस से जो सेलेक्ट हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनके जो उम्मीदवार होते हैं, उनके सम्मेलन होते हैं और वो वहां पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और जो राज्य प्रतिनिधि प्राइमरी के माध्यम से और कॉकस के माध्यम से निकलकर जिनकी लिस्ट तैयार होती है वो लोग अपना मत वहां पर रखते हैं और सभी लोगों को अपने फेवर में करने के लिए बातचीत अपना वहां पर रखते हैं। तो जो यहाँ पे जो राज्य प्रतिनिधि जो वोट देकर वहां पर आए हैं उस सम्मेलन में वो अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन कर लेते हैं। इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रतिज्ञाबद्ध या फिर प्रतिबद्ध प्रतिनिधि, जिनका पहले से ही प्राइमरी जो हमने दूसरा चरण देखा था प्राइमरी और कॉकस का, उसमें जो अनलिस्टेड जो उम्मीदवार हो जाते हैं उन्हीं को ही लेकर वो लोग बातचीत करते हैं और उन्हीं के लिए ही वोट डालते हैं, उन्हीं के बारे में बात होती है। और दूसरे प्रकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं अप्रतिबद्ध या फिर सुपर डेलीगेट्स। ये वो होते हैं जो वहां पर अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनकर ही समर्थन करते हैं। अब बात आती है चतुर्थ चरण की। इसमें ये जो चतुर्थ चरण होता है ये सितंबर के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक होता है और ये दौर होता है अमेरिका में सबसे अहम दौर, और ये होता है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार और प्रसार का दौर। इसमें प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है और अमेरिका की जो दो प्रमुख जो पार्टीज हैं या दल हैं, राजनीतिक दल, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, ये इन दोनों ने मिलकर सन 1987 में एक एनजीओ बनाया था जिस एनजीओ का नाम था कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट। और ये जो एनजीओ है ये काम करती है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट डिबेट को करवाने का। इसमें ये जो कमीशन होता है ये हर 4 साल में प्रेसिडेंट के 4 और वाइस प्रेसिडेंट के 1 डिबेट करवाती है। और इस डिबेट का जो परिणाम होता है या यूं कहें कि जनता के जो रुझान आफ्टर डिबेट क्या रहेंगे या क्या होते हैं, तो अमेरिका की कुछ संस्थाएं होती हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करती हैं और ये फाइनलाइज कर लेती हैं कि अमुक जो उम्मीदवार है किसके फेवर में रुझान जनता के ज्यादा है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अमेरिका में 3 प्रकार के स्टेट्स हैं, रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और पर्पल स्टेट्स। रेड स्टेट्स गढ़ माने जाते हैं रिपब्लिक पार्टीज के और ब्लू स्टेट्स गढ़ माने जाते हैं डेमोक्रेट पार्टी के, और जो पर्पल स्टेट्स हैं वो हैं स्विंग स्टेट्स और इनको हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो स्टेट्स हैं जहां से निर्धारित होता है अमेरिका का राष्ट्रपति पद।
क्योंकि ये इन स्टेट्स में स्विंग स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना रिपब्लिक का कोई ज्यादा बहुमत होता है, ना ही डेमोक्रेट का। तो यहाँ पर जो अमेरिकन पद के जो उम्मीदवार होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं। इन स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है, नेवादा है। ये कुछ इस तरह के स्टेट हैं जो हम पर्पल स्टेट्स का जिसमें हम बात करते हैं। अब हम अमेरिका की संसद की बात करते हैं। अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस, जिसमें 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर होता है लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर लोकसभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या उसको हाउस कहा जाता है, और दूसरी होती है सीनेट, जिसको हम अपने यहाँ की राज्यसभा से जिसकी तुलना कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो अमेरिका की जो संसद है उसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें है 435 सीट्स और सीनेट में है 100 सीट्स। 435 सीट्स वहां की जो 50 स्टेट्स हैं उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर निर्धारित होती हैं, और जो सीनेट की जो 100 सीटें हैं वो हर एक स्टेट से डबल होती हैं, क्योंकि वो समान प्रतिनिधित्व की प्रणाली को इख्तियार करना चाहता है इसलिए। और ये टोटल मिलके होती हैं 535 सीट्स। बाकी बात आती है 3 और सीट्स की, जो वहां की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां से 3 सीटें पहले से ही डिसाइडेड हैं। तो टोटल मिला के अमेरिका में 538 सदस्य होते हैं वहां की कांग्रेस में, और उसके लिए वहां के उम्मीदवार राष्ट्रपति जो पद है उसके लिए वहां पर चुनाव चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें 5वें चरण की। जो 5वां चरण है वो है चुनाव दिवस या इलेक्शन डे हम जिसको बोलते हैं, जो हर 4 साल में नवंबर माह के पहले मंगलवार को, जो पहले सोमवार के बाद पड़ता है, उसमें होते हैं। अब इस राष्ट्रपति चुनाव में वहां का जो वयस्क नागरिक होता है वो भाग लेता है, लेकिन हम यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो अमेरिकी संविधान है इसके अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक निर्वाचक मंडल। इसके माध्यम से ये जो मंडल है ये तय करता है कि हमें कैसे राष्ट्रपति को चुनना है। और यहाँ के जो निर्वाचक मंडल की हम प्रणाली की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वर्तमान में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, 538 इलेक्टर होते हैं, जो हम इसकी संसद में हम उसके बारे में पहले से ही पता कर चुके हैं। तो ये निर्वाचक मंडल काम कैसे करता है, ये राष्ट्रपति का जिस दिन वोट होता है, जैसे इस बार हमने 5 नवंबर को देखे हैं 2024 में, तो ये पूरे राज्य में वोट गिने जाते हैं। उसके उपरांत फिर जो 48 राज्य हैं वो इनकी एक, यहाँ पे मैं एक चीज से आपको अवगत कराना चाहूंगी कि यहाँ पर एक परंपरा है, विनर टेक ऑल की परंपरा। अब अगर इस परंपरा को हम अगर जाने तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसके हम एक मोटा मोटी तौर पे समझ लेते हैं कि जो 48 राज्य हैं ये विनर टेक ऑल की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने जो निर्वाचक हैं उनका चयन कर लेते हैं। और इसमें 2 ऐसे स्टेट हैं अमेरिका में, मेन और नेब्रास्का, जहां पर की आनुपातिक प्रणाली से ये अपने निर्वाचकों का चयन करते हैं। जैसे हम अपने यहाँ पे राष्ट्रपति जब चुनाव होते हैं भारत के, उससे हम इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद जो होता है राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि 538 सदस्य हैं तो उनके 270 आधे से ज्यादा हमें चाहिए होता है, तो 269 + 1 270 वोट कम से कम उनको जीतने के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जिस दिन इलेक्शन होता है उसी दिन, वैसे तो आमतौर पर हम देख लेते हैं शाम तक कि राष्ट्रपति कौन बनने वाला है और वो निर्धारित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो इसकी एक प्रोसेस है अमेरिका में, क्योंकि सब कुछ उनके संविधान में तिथिबद्ध है, तो वो होता है दिसंबर माह के मिड में। और वो अगर हम देखा जाए तो सोमवार को मिड में होता है। जो दूसरा बुधवार आता है उसके बाद का जो सोमवार आएगा वो बेसिकली हम देखें तो मिड में ही आता है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि पूरे वोटिंग सिस्टम को अपनाते हैं, वोटिंग करते हैं अपने राज्य में। और इसका जो अंतिम चरण है उसमें क्या होता है, जो राज्य सरकार है अपने राज्य में जाके सारे जो मतदान की प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है उसके बाद बैलेट बॉक्स को बंद करके अगला जो कैलेंडर वर्ष आएगा, जैसे अब हमारा 2025 की 6 जनवरी को वहां की जो संसद है कांग्रेस, उसके समक्ष एक जॉइंट मीटिंग होती है और उस जॉइंट मीटिंग को की हेडशिप करते हैं वहां के वाइस प्रेसिडेंट, और उनके सामने फिर गणना होती है। फिर वहां पे जिस व्यक्ति को 270 से अधिक वोट पड़ जाते हैं वो अंतिम रूप से वहां के राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर लेते हैं।
और एक चीज और है अमेरिका में, अगर कई बार ये होता है कि नहीं, इस तरह की 2-3 बार ऐसा अमेरिका के इतिहास में हुआ है कि नहीं उसको बहुमत मिला है, तो वहां पर अमेरिकी संसद में ही तुरंत एक आकस्मिक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, जिसे कंटिजेंट इलेक्शन कहा जाता है, जिसमें एक राज्य एक वोट की प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब 50 लोग वहां पे जो मेंबर होंगे वो 50 के हिसाब से मतदान करेंगे। फिर भी अगर बहुमत नहीं मिलता है तो 4 मार्च के दिन उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बना लिया जाता है, और अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 20 जनवरी को उनका एक राष्ट्रपति पद की शपथ होती है, जिसे इनॉग्रेशन डे या उद्घाटन दिवस कहा जाता है। आई होप आपको मेरी ये जो मैंने आज बात की है वो काफी हेल्पफुल रही होगी और फ्रूटफुल रही होगी, और मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे अपने विचारों को साझा करके आप लोगों के साथ। थैंक्स सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। मेरा आज का विषय है अमेरिका चुनाव का भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए जो अभी हमारे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जी जीते हैं, उनकी नीतियों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। इससे पहले हमें 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं के बारे में जानना पड़ेगा। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इनके मुख्यतः 2 मुद्दे थे। पहला अफगानिस्तान से वहां की आर्मी को वापस लाना, जो 2021 में पा लिया गया था, और सेकंड इनका मेन मुद्दा था यूएस और मैक्सिको के बीच में दीवार को बनाना। वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो इनका मेन मुद्दा है टैक्स में डिडक्शन करना। ये टैक्स मिनिमाइजेशन नियर अबाउट 0 भी हो सकता है और मिनिमम एज कंपेयर 0 भी हो सकता है। तो इससे विश्व में और इसमें यूएस की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं इस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के थ्रू आप लोग को समझाना चाहूंगा। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि टैक्स डेफिसिट क्या होती है। टैक्स डेफिसिट एक वैसी प्रोसेस है जिसमें देश दुनिया से आयात तो बहुत ज्यादा करता है पर निर्यात उतने तरीके से नहीं कर पाता है। तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें यूएस को, तो भारत यूएस को निर्यात बहुत ज्यादा करता है, बट आयात यूएस से बहुत कम करता है। और यदि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के 2024 की नीतियों के बारे में देखें, जो वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम टैक्स जो डेफिसिट है उसको 0 कर देंगे तो इससे यूएस पे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा और वहां पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए वो जो वहां के आयात शुल्क है उसको बढ़ाएगा। यदि आयात शुल्क बढ़ता है और भारत यूजुअली आयात यूएस को बहुत ज्यादा करता है, तो इससे भारत के जो आयात शुल्क है उसमें वृद्धि हो सकती है। यदि हम लास्ट 5 साल की बात करें तो 5 साल में भारत द्वारा यूएस के साथ नियर अबाउट $191 बिलियन का ट्रेड किया गया था, जिसमें यूएस ने 118 बिलियन डॉलर को भारत से प्राप्त किया। भारत ने यूएस से प्राप्त किया, वही यूएस ने भारत से 73 बिलियन डॉलर को प्राप्त किया। तो इससे दिख सकता है कि यदि वहां पे टैक्स रिडक्शन होता है तो भारत पे कहीं ना कहीं भारत में भी इकोनॉमिकल क्राइसिस का आसार है। विल नॉट से कि ऐसा हो सकता है, बट आसार है, ऐसा हो सकता है। सेकंड चीज, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद विश्व में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है मिडिल ईस्ट, हमें उस पे जाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के प्रति जो सख्त रणनीति हम लोग को देखने को मिली थी, वो ये सब चीज बता सकता है कि इजराइल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इजराइल पूरा डोमिनेशन में आएगा, बट कहीं ना कहीं इजराइल को फायदा मिल सकता है, क्योंकि हमास एक मुस्लिम कंट्री है। और जैसे कि हमने 2016 में देखा था, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 11 मुस्लिम देशों पे कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। वही अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन यूजुअली
यूएस समर्थित देश था। युद्ध में यूक्रेन का रूस के अगेंस्ट में इतना देर तक रुकने का सबसे बड़ा कारण ही यहाँ पे यूएस द्वारा दिया गया पैसा था। यदि डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि हमारी जो आयात शुल्क है उसको हम बढ़ा दें और हम यहाँ पे टैक्सेस को कम कर रहे हैं, तो देश की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए वो अब यूक्रेन को दिया जाने वाले पैसे को काफी कम कर देंगे, जिससे हम लोग ये मान सकते हैं कि रूस को यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और यूक्रेन थोड़ा सा लो लेवल में जा सकता है, क्योंकि उसे जो भी वहां से रेमेडीज मिल रही थी इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो अब हमें थोड़ा सा कम मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम चीन के बारे में बात करें, जैसा मैम ने भी बताया, 2016 में यूएस और चीन के मध्य एक ट्रेड वॉर, एक आप कह सकते हैं कि एज अ कोल्ड वॉर हम लोग को देखने को मिली थी, जहां यूएस चाहेगा कि हम चीन पे और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाएं और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उनको बढ़ाएं, जिससे उस देश को तो नुकसान होगा पर यूएस को कहीं ना कहीं फायदा होगा। इस चीज का फायदा हमारा देश प्यारा भारत उठा सकता है, जहां यूएस से आने वाली कंपनीज वो भारत में स्टेबल करके भारतीय ग्रोथ को और भी आगे बढ़ा सकता है। एनी क्वेश्चंस? Good morning, sir, and good morning to all of you, my batchmates. Today, I, Sonalika Beni Jaiswal, I am here to discuss on a topic: Trump wins US election, what it means for the India. उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बधाई देना चाहूंगी। आज फाउंडेशन डे है उत्तराखंड का, 24th. I am wishing you. And now I start my topic, which I have prepared right now. So I have taken key points. Trump wins a US presidential election. It has notable implication for India in several areas. Strategic partnership and defense. Defense deal. Trump administration's arms sales to India, leading to more high-value defense transactions and joint military exercise. Second, trade and economic relation. Trump administration imposed tariffs on some India good to trade imbalance. India's export to the US. It leads to renewed pressure for India to open its market or reduce barriers. Energy. Trump administration focused on boosting US energy exports, especially natural gases to India. This could continue expanding India's option for energy sources. In 2023, the United States emerged as India's second largest supplier of liquefied natural gases, which we call LNG. Immigration and visa. Student and skill migration. Restriction could lead to fewer India student and professional in the US, which might impact educational exchange and the flow of knowledge remittance back to India. Fourth point I have taken, climate and environment. Climate commitments. Trump withdraw from the Paris agreements. A lack of focus on climate change under Trump could lead to fewer collaboration with India on renewable energy projects or climate initiatives. If I summarize in with 2 or 3 words, summarize a Trump win would mean a focused cooperation with potential difference cooperation policy. The relationship would emphasize counterbalancing and maintaining close military ties. And after completing this topic, I would especially thank to my father, who always wanted me to be on stage, and I have been on stage. So every time I go to stage, I thank my father. The dream he saw in me, I am somehow balancing it to prove him that yes, your blood has that character which has given me. So thank you, father, for this much energy, confidence. This is all because of you I am here.
And thank you so much, sir, for all your motivation, all your words, and I am very happy to be part of this institute. Thank you so much. हेलो एस्पिरेंट्स एंड ऑनरेबल टीचर। आज मैं अमेरिका चुनाव के मुद्दे पर और अमेरिका में राष्ट्रपति बनने की कुछ कंडीशंस पर अपने विचार या रखना चाहता हूँ। कुछ त्रुटियां होगी तो आप उन्हें बता दीजिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने की कंडीशंस ये होती है कि जो अमेरिका का जो नागरिक होगा वो पहले वो यूएसए का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नागरिक होना चाहिए। अगर वो जन्म से नागरिक नहीं है तो वह नहीं बन सकता, और कम से कम वो अमेरिका में 14 साल से निवास कर रहा हो, और 35 साल की उम्र के बाद ही राष्ट्रपति बना जा सकता है। अमेरिका चुनाव 5 नवंबर को हुआ था। इस बार 2024 का चुनाव 5 नवंबर 2024 को हुआ। 1787 से 2024 तक लगभग अमेरिका के संविधान में 27 बार संशोधन हो चुका है, परंतु मतलब बहुत कम बार है, जबकि भारत के संविधान में इससे ज्यादा है। जबकि जो भारत आजाद हुआ था 1947 में हुआ था, परंतु अब तक बहुत अधिक संशोधन हो चुके हैं, लगभग 106 या उससे ज्यादा बार हो चुके हैं। परंतु अमेरिका में आजाद हुए बहुत समय हो गया, 200 साल से अधिक का समय हुआ, परंतु उनके संविधान में संशोधन ज्यादा अधिक बार नहीं हुआ, 27 बार ही हुआ है। इसका चुनाव के अंत में नेशनल कन्वेंशनल होता है। इसमें यह तय होता है कि जो दल का आखिरी सदस्य होगा वो राष्ट्रपति बनेगा, और उसके साथ उसका उपराष्ट्रपति भी होगा। इस बार 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 267 सीट के साथ अभी आगे चल रहे हैं, 267, और कमला हैरिस 224 सीट के साथ, जो कि 270 सीटों पर बहुमत प्राप्त होता है, जिसके पश्चात वो राष्ट्रपति बनता है। परंतु अभी डोनाल्ड ट्रंप 267, इसके पश्चात जो राष्ट्रपति की शपथ डोनाल्ड ट्रंप अगले 2025 में 20 जनवरी 2025 को लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं। अमेरिका में हुए हाल फिलहाल के चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं हम आज। चुनाव के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि आज के जो राष्ट्रपति बने हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, और इतिहास में पहली बार अमेरिका में हुआ है कि जब कोई दोबारा राष्ट्रपति बना हो, एक ही व्यक्ति कोई दोबारा राष्ट्रपति बना हो, यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका के इतिहास में। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से भारत के संबंधों में जो प्रभाव पड़ेगा, हम उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। आज हमारे व्यापार और रक्षा संबंध डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से एक अलग ही इफेक्ट देखा जा सकता है। रक्षा संबंधी विषय पर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में देखा जा चुका है कि चाइना के प्रति उनका बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो चाइना के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसा हमने उनके पिछले चुनाव में देख चुके हैं हम। ऐसा यह स्थिति भारत के लिए एक अच्छी स्थिति साबित हो सकती है, या अच्छा पक्ष हो सकता है भारत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान में कार्ड पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, यह हमारे लिए एक अच्छी बात ये भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत और चाइना के बीच में हथियार के निर्माण और सैनिक अभ्यास और जैसी चीजें हमारे आजकल मतलब अब हम फिर से वापस कर सकते हैं। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है हमारे पास। दूसरी तरफ व्यापारिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूएसए अमेरिका जो है प्रथम की नीति पर कार्य करता है। ये भारत और यूएसए के बीच लगभग 2000 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दर ज्यादा बढ़ा दी तो भारत के लिए यह नुकसान हो सकता है। ट्रंप की कारोबारी नीतियों से भारत का आयात और महंगा हो सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना यह भी है कि ट्रंप के टैरिफ नीतियों को लागू करने से 2024 तक भारत की जीडीपी में 0.1% फीसदी की गिरावट आ सकती है। ट्रंप
अपने पहले कार्यकाल के दौरान में H1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान में जो पहला कार्यकाल था इसके पहले का, उनमें H1 वीजा पर उन्होंने एक सख्ती दिखाई थी, जिससे वे प्रवासियों के लिए काफी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। यूएसए का H1 वीजा एक प्रकार का गैर आप्रवासी वीजा है, जो विदेशियों के पेशेवरों को यूएसए में काम करने में अनुमति देता है। जो H1B वीजा है वो विदेशी मतलब प्रवासियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। इसके तहत हमें कई सेक्टर्स हमारे जो भारत के हैं वो प्रभावित दिख सकते हैं हमें, जैसे IT सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, साइंस सेक्टर्स हुए, ये सब हमारे इम्पैक्ट देख सकते हैं कि हम कि मतलब नुकसान हम थोड़ा, क्योंकि टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो हमसे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है हमें, इस बात से हमें। थैंक यू। My name is रुचि शर्मा। My topic is महिला राष्ट्रपति के इंतजार में 235 साल बीत गए हैं। 1788 और 89 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। अधिकांश इतिहासकार और लेखक मानते हैं कि विक्टोरिया वुडहुल 1872 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। 1872 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी। हालांकि देश में अब तक पहली महिला राष्ट्रपति नहीं मिल पाई है। ये इंतजार 235 वर्ष हो गए हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों ने एक बार फिर से देश में महिला राष्ट्रपति होने की संभावना को खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के दौरे में विजेता बनकर उभरे, जबकि कमला हैरिस उनसे काफी पीछे रह गई। 1788-89 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो अधिकांश सरकार और लेखक मानते हैं कि विक्टोरिया वुडहुल 1872 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। हालांकि देश को अब तक पहली राष्ट्रपति महिला नहीं मिल पाई है। ये इंतजार 235 वर्ष लंबा हो गया है। महिलाओं के मामलों में सर्वोच्च पद पर अमेरिका का रिकॉर्ड 0 है। अमेरिका में कई उच्च पदों को महिलाओं ने संभाल चुकी है। संसद के दोनों सदनों में महिलाओं की मौजूद रही है, लेकिन महिलाओं के मामलों में बात जब देश के सर्वोच्च पद की आती है तो अमेरिका का रिकॉर्ड 0 है। 2016 में हिलरी क्लिंटन के पद में काफी नजदीकी पहुंची, लेकिन हार गई। उन्हें ट्रंप के करीब 28 लाख अधिक पॉपुलर वोट मिले, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ट्रंप के करीब 28 लाख अधिक पॉपुलर वोट मिले, लेकिन चुनाव ट्रंप ने जीता क्योंकि उन्होंने कॉलेज का बहुमत प्राप्त कर लिया था। अमेरिका में सिर्फ दुनिया की आर्थिक और सैन्य महाशक्ति नहीं, बल्कि कई लोगों इसे लोकतांत्रिक के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में भी जानते हैं। लेकिन सर्वोच्च पद पर जब किसी महिला का न होना देश के लोकतांत्रिक स्वरूप पर सवालिया निशाना खड़े करता है। कई विद्वानों का मानना है कि सत्ता में महिलाओं का होना राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास और वैधता की भावनाओं को मजबूत करता है। ये अन्य महिलाओं को भी उम्मीदवारों के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।